last time we have discussed the postulate 2 and 3. Postulate 2 was when we postulate 2 क्या था, कौन बताएगा आपने से? क्या था postulate 2? सिया कहाँ गया सिया? हाँ दानिश, आप बताओ दानिश। आप याद नहीं है किसी को? जो हर्मिशन ऑपरेटर होता है क्लासिकल। हाँ जी, क्लासिकली में फिजिकल ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग क्या होता है आपके पास? हर्मिशन ऑपरेटर। और तीसरा पोस्टुलेट क्या था? Whenever you apply a Hermitian operator, it will give a eigenvalue. Eigenstate पे जब Hermitian operator apply करते हैं, it will give you a eigenvalue. Examples कुछ ले लेते हैं। लेते हमने ली थी एग्जांपल्स के तौर पे आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, आपने फाइंड करना है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आइगन वेक्टर, आइगन स्टेट या आइगन स्टेट, आइगन वेक्टर भी कहते हैं आइगन स्टेट, आइगन वैल्यू एंड मोमेंटम ऑपरेटर P. Find the eigenstate, eigenvalue of momentum operator P. And it is, I have already explained that it is partial H over partial Q. If this is K, then this will be a K. Okay? So solution क्या आएगा इसका? If we apply a momentum operator on the momentum is, I have already explained in a classical mechanics, all vector will be representing by the column matrices, okay, and it will be transformed under rotation and as well as the translation transformation as a vector, okay. If it has a single indices, then it will be treated as a vector. If it has a zero indices, then it will be a scalar quantity. Okay. So momentum is a vector. So momentum operator will be have a one free indices when we apply on this EK. Okay. Then we apply a state. It will give as I have already explained that if this is eigenstate of the momentum operator, then it will give you the eigenvalue Pk, if it is along the x-axis, y-axis, or it is along if it is for one element or two element. K may be it representing one element, two element, or three element. Or K is representing the along x-axis, y-axis, z-axis. अगर momentum किसी भी axis के along है, तो Pk mean P1, P2, P3. Or P, you know that what is the P? P is as in classical mechanics, you know that the Pk is partial L over partial K dot. There was a dot. Okay, dot means time derivative with respect to time. Okay. हाँ, indices बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। If you don't know anything about the indices, then result will be totally wrong. क्योंकि indices ही बताएंगे ये वेक्टर है, स्केलर है, ये कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, ये ट्रांसफॉर्म होंगे या नहीं होंगे। तो अभी तो आपके मैंने कहा कि दिस कोर्स इज एट द सिंपलेस्ट लेवल। अभी आप जो है इंडिसेस को इतने क्रिटिकली, जब आप एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में आएंगे या एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स में आएंगे, तो ये इट इज़ द अंडर ग्रेजुएट लेवल से। सो दैट्स व्हाई अभी आपको लेफ्ट राइट कि लेफ्ट इंडिसेस क्या होता है, राइट इंडिसेस क्या होता है, अभी कोमा शोमा मैं यूज़ नहीं कर रहा। अगर सेमी कॉलम लगा हो तो इसका क्या मतलब होगा, सेमी कॉलम नहीं लगा होगा इसका मतलब क्या है। अगर
as a superscript यूज हो रहा है, तो then what is the meaning will be totally different. If it is using as a subscript, then meaning will be a totally different. तो वैसे तो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ ये जो है ना नीचे आ रहा है तो ये ऊपर होना चाहिए, ये अभी आपके लिए नहीं है। ये यहाँ अगर डेरिवेटिव में एज ए सबस्क्रिप्ट आ रहा है तो ना रिजल्ट जो है वो सुपरस्क्रिप्ट आएगा, डेरिवेटिव में सुपरस्क्रिप्ट आ रहा है तो रिजल्ट सबस्क्रिप्ट आएगा। बट टाइमिंग यू आर अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट, दैट्स व्हाई अभी मैंने वो टॉपिक आपके वैसे भी कोर्स में नहीं है, तो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स। बट inshallah ta'ala when you will come in advance when you take the advanced level course like advanced classical mechanics or advanced quantum mechanics, then हम जो है उस अलजेब्रिक को यूज करेंगे, ठीक है। तो वो अच्छा है कि मोमेंटम ऑपरेटर H cut mean as I have already H Planck's constant H if you are confused with H cut then we may convert it into the in a natural unit। अगर आप H cut ना भी यूज करना चाहें हमारे पास चॉइस है। मेरा ख्याल है कि ठीक है, तो अगर मतलब अगर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको पता है कि यू नो दैट all physical quantities which depend upon the unit, when you change the unit its magnitude will be changed. For example अगर आप 1 लीटर दूध लेते हो तो वो 1 लीटर है, but if you convert it into the milliliter then that will be 1000 milliliter. Its magnitude will be a change. So we can define the unit that is defined as a natural, if H cut is creating a problem for you then you can define the natural, that is the natural unit. In natural unit are defined in such a way that C cut H cut will be equal to 1. In natural unit it is a 1. Or for reference you can I think for reference you may see the chapter 6 of quantum field theory by Mendel and Shah. So if you are interested that this H cut or C should not appear on the in your equation, then you may convert, क्योंकि 1 को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करें तो सर H काट की जगह C भी लिख सकते हैं कहीं? नहीं, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, मैग्नीट्यूड दोनों की। नेचुरल यूनिट सी कट की और एच कट की मैग्नीट्यूड मतलब जो कोफिशिएंट है दैट विल बी ओके। आप इसको मजीद देखना चाहो तो मेंडल शाह की बुक है क्वांटम फील्ड थ्योरी की, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई मे ईमेल, ठीक है, एज एन ईमेल भी आपको। हां जी, मेंडल एंड शाह, ठीक है। तो अच्छा, तो आप मोमेंटम ऑपरेटर, व्हेन यू अप्लाई अ मोमेंटम ऑपरेटर, सर मोमेंटम ऑपरेटर को आइगन वैल्यू अप्लाई करते हैं। मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई किए इस आइगन स्टेट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन योर प्रीवियस कोर्स दैट व्हेन वी अप्लाई द ऑपरेटर ऑन इट्स आइगन स्टेट इट विल गिव यू द आइगन वैल्यू एज ए आइगन वैल्यू एंड स्टेट विल बी and the state there will be no change in state। अगर चेंज स्टेट में चेंज हो जाए तो वो आपके पास जो है okay, whenever you apply the momentum operator it will give you the eigen value and there will be no change in state। eigen state में मैंने आपको सेकंड एंड थर्ड पोस्टुलेट में बताया था कि जब भी कोई ऑपरेटर अपनी आइगन स्टेट पे अप्लाई करता है तो स्टेट विल नॉट चेंज। आइगन स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती, दे मस्ट बी रिमेन द सेम। ओके, सो आपके पास ये इसमें जो भी किया है सर ये दिस इज आइगन वैल्यू और वो ये ऑपरेटर हर्मिटियन ऑपरेटर। ओके, इफ वी पुट द वैल्यू माइनस आयोटा h कट, ये जो ऊपर कैप सी बनी हुई है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस इज अ ऑपरेटर। ओके, एंड अगर वैसे नहीं लिखा हो तो p जो आपको पता है ये सादा p का मतलब होता है वो उसकी वैल्यू है, मतलब उसकी आइगन वैल्यू,
ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ अगर मोमेंटम ऑपरेटर आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम operator and this is eigenvalue. So these are the three things. Okay, this must be a thing and this will be a moment. Okay, so if I put, if you are interested in natural unit, P is minus iota. Natural unit में जाना चाहते हो तो h cut will be 1, ठीक है, and this will be a partial over partial q k. Okay, and psi pk. Okay. Okay, so minus iota partial over partial qk तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, और इसमें समझ क्या है, ये इधर चला गया और ये नहीं है, ये जो है ये इधर चला गया और ये जो चीज है ये डिवाइड हो गया हाँ जी, ये आई हैव पुट दिस वैल्यू ऑपरेटर की वैल्यू. Okay. So when we integrate the both sides, so या ये माइनस इयोटा भी हम यहाँ से माइनस इयोटा नीचे ले जाएंगे, ऐसा ही. सर एच कट क्या हो गया? एच कट 1 कर दिया मैंने नेचुरल यूनिट. अगर एच कट आप यूज करना चाहते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे थे मैंने कहा एच कट की जगह अगर आप उसको नेचुरल यूनिट में मान लेते हो तो दैट इट इज आल्सो एक्सेप्टेबल. अच्छा, P जो है माइनस एयोटा उधर चला गया और ये आपके पास ही आ गया. तो एयोटा ऊपर जाए तो क्या होता है, ये देखना कहाँ तक यहाँ ठीक है. तो ये माइनस एयोटा ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एयोटा, क्योंकि 1/एयोटा इज इक्वल टू माइनस एयोटा. ठीक है, तो आपके पास ये ओके. एंड ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे आपके पास फंक्शन है, तो ये क्या होगा log ऑफ साइन pk और ये क्या आ जाएगा आपके पास एयोटा pk. ये आपने ऐसे किया था ना इंटीग्रेट, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया. ठीक है, इंटीग्रेशन आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर ये कैंसिल नहीं हो सकती न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है सर. मेरा ख्याल है मैं पहले भी बता बैठा हूँ कि व्हेन एवर ऑपरेटर इज अप्लाइंग, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास साई अल्फा आई है और नीचे अल्फा आई है, तो अगर आप इसको ऐसे काटते हो तो देन दैट इज नॉट.
सो हियर डेरिवेटिव अप्लाई, ऊपर अगर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है तो उसका आपने ये पढ़ा होगा कैंसिल नहीं हो सकता डी एफ ओवर एफ, इसका ये किसके बराबर था, log ऑफ एफ। ये सर फंक्शन डिफरेंट ठीक है, so that will be equal to this, okay। और तो एंटी लॉग लेने से आपके पास साई पी के इट विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ योगा पी के। Since this is the main basis, so it means there is a summation. Just a minute. यस So this is the your state, momentum state. द स्टेट्स इन्वॉल्व बॉडी में आयरन स्टेट बताई थी ना, जब ये ऑपरेटर अप्लाई होता है तो उसकी जो जिस स्टेट में वो होता है वो स्टेट जो है उसकी आयरन स्टेट, ये इट इज द आयरन स्टेट ऑफ मोमेंटम, ओके। ओके, अभी ये मोमेंटम स्टेट पूरी नहीं आई, अभी हम इसको अभी आगे करेंगे, ठीक है, क्योंकि पी की हमें वैल्यू निकालनी है, अभी हमें वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ओके। वो व्हाट इज द पी, if we add a lambda, okay, exponential is like a sine and cosine function. If we add a lambda wavelength, okay, mean you may say that if I explain it in the form of picture, that इस लैम्डा लेंथ के पास हर चीज अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है, ठीक है। सो दैट विल बी, आप इसको ई की जगह क्योंकि हम ये यूज कर रहे हैं तो हम ये लिख लेते हैं, ये आ जाएगा वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं समझ यस गुड क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक लैम्डा जैसे टाइम पीरियड है, मतलब अगर आपके पास t है इसमें प्लस आप टाइम पीरियड ऐड करते हो तो इस एक्सपोनेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगी, ये t ही रहेगी, मेरी बात समझ आई। इसी तरह if this is a change in according to position, एक्सपोनेंशियल ऑफ एटा अल्फा किसके बराबर, चलो आपको n से नहीं समझ आ रहा होगा, अल्फा थीटा पढ़ा होगा, चलो थीटा से करो, ये पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल ऑफ एटा थीटा, ये किसके बराबर होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यस यही होता है, cos थीटा प्लस एटा sin थीटा, ठीक है। सर अगर फर्क यहाँ भी आए ना तो देखें यहाँ पे आप उसको एक आइडेंटिटी मैं क्या सर ये जो आपने लैम्डा ऐड किया ना, हाँ इसको एक आइडेंटिटी कंसीडर कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी कंसेप्ट कर लेते हैं, ये ऐसे ही है। नहीं मैं आपको समझाता हूँ, नहीं समझाऊंगा, समझाए बगैर आगे नहीं जाऊंगा, लेक्चर जितना मिले। एनीवे आपके पास ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल थीटा cos थीटा प्लस एटा sin थीटा होता है, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर थीटा में एक्सपोनेंशियल एटा थीटा में प्लस
2 एयोटा के साथ 2 पाई एन आप ऐड करते हैं, मतलब ये थीटा एंगल है तो इसके बाद रोटेट करके आएंगे तो दोबारा इसी पे आ जाएंगे ना 2 पाई एन के बाद, 2 पाई एन के बाद, तो ये आपके पास कॉस थीटा प्लस 2 पाई एन प्लस एयोटा साइन थीटा प्लस 2 पाई एन, ये जो है ये आपके पास कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा आ जाएगा। समझ आ गई? क्लियर हो गया? तो यानी आपके एंगल में ये 2 पाई एन का जो इजाफा होगा इसमें कुछ चेंज नहीं है। और कॉस्ट 2 पाई की जगह कुछ और लिख सकते हैं। दिस इज योर साइन, नहीं 360 का है। 360 मैंने रेडियन में लिख दिया, उस डिग्री में 360 होगा, ये तो अंडरस्टूड है। ये दिस इज अ साइन थीटा, इसमें भी चेंज ऐसे आती है। और दिस इज अगर ये 90 से शुरू हो रही है आउट ऑफ फेज, 90 का फर्क है तो ये कहलाता है कॉस थीटा। जो 0 से शुरू हो रहा है वो साइन थीटा और जो 90 से शुरू हो रहा है वो कॉस थीटा होता है। अच्छा, जिस तरह ये 2 पाई के बाद एंगल रिपीट हो रहा है, अगर इसको मैं पोजीशन में, मतलब इसको मैं कहता हूं x, इस पोजीशन को मैं कहता हूं x, तो इस पोजीशन के बाद जो ये डिस्टेंस आएगा, ये अगर पोजीशन x है तो ये जो है, ये जो लेंथ है जिसमें अपने आप को ये दोबारा रिपीट करता है, ठीक है, इसे कहते हैं पाई लेंथ। जो वेव लेंथ है चीज का एक जो उसका रीजन है, डिफाइंड रीजन है, उसे आप वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है सर। एक मुकम्मल उसका साइकिल जो है, सर्कल का जो है पोजीशन के लिहाज, ये असल में डिपेंड करता है। अब सर्कल जो है टाइम के लिहाज से ले रहे हो तो टाइम, जिस टाइम के बाद रिपीट करता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, ठीक है। अगर थीटा के हिसाब से चेंज कर रहे हैं तो 2 पाई, और अगर पोजीशन के हिसाब से चेंज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? लैम्डा। यानी अगर ये पोजीशन x है तो ये x प्लस, और ये लेंथ क्या हो जाएगी? लैम्डा। यानी हर लैम्डा के बाद वो अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। सर लेंथ लैम्डा है और पोजीशन x प्लस लैम्डा। इनिशियल पोजीशन x ली, इसमें लैम्डा ऐड किया तो वो दोबारा वही सर्कल चलेगा, ठीक है। फाइनल पोजीशन जो है, ओ सॉरी, यहाँ भी ये पोजीशन है ना, पोजीशन के साथ लिखना पोजीशन है ना, पोजीशन में चेंज हो, ये क्योंकि इनिशियल पोजीशन होगी और ये लैम्डा उसके बाद की पोजीशन। आप समझ आ गई है? ये दोबारा बताओ, आपको आ गई? ये इनिशियल पोजीशन होगी, x नॉट हो गया, ये उसमें लैम्डा ऐड किया तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगी, मतलब उसकी वही चेंजिंग जो है वो दोबारा रिपीट होगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक सर्कल है, अगर आप दिस इज एट एंगल, मतलब ये x एक्सिस के एंगल थीटा बना रहा है, तो ये घूम के जब 2 पाई पे भी होगा तो थीटा प्लस 2 पाई जो है 2 पाई एन से मराद है कि पहली दफा भी, दूसरी दफा भी, तीसरी दफा, जितनी दफा भी रिपीट करें तो ये इट विल बी एट द सेम स्टेट, ये उसी पोजीशन पे होगा। इसी तरह वेवलेंथ से मराद ये होती है कि जहां से शुरू हुई है वहीं एन को, और दोबारा से वो पीरियड, यानी फोल्डेबल डीजनरेसी को मैंने पहले भी नहीं, आपने लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ा हुआ वैसे, सॉरी। जब जहां फोल्डेबल डीजनरेसी पैदा होती है लीनियर अलजेब्रा में मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको अगर इंटरेस्ट हो तो लीनियर अलजेब्रा का भी इसका फोल्डेबल डीजनरेसी क्या है, फंक्शन पे पूरा एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर एंड इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल। तो कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो, चाहे आपके पेपर में ना भी आए लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसी तरह वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मुझे वेवलेंथ मैकेनिक्स से कोर्स में बताना तो चाहिए था आपको कि वेवलेंथ कहते ही उसे हैं जिसमें वो पोजीशन के लिहाज से, वेवलेंथ पोजीशन के लिहाज से, टाइम पीरियड टाइम के लिहाज से, फ्रीक्वेंसी भी इसी तरह चेंज आती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, so if I add, sorry, ये मुझे पोजीशन में ऐड कर, if we add a lambda on a position, there will be, this position will be repeat, wavelength उसी तरह।
मैं आपको एक वैसे मशवरा दूंगा ना, और कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे क्वेश्चन करो, बार बार क्वेश्चन पूछो, आगे ना जाओ जब तक, चाहे वो वेरिएबल मैकेनिक का पार्ट हो, चाहे वो बहुत ही सिंपल मैकेनिक्स का पार्ट हो, ठीक। अच्छा, एनीवे ये क्लियर हो गया। मैं फिर आगे इसलिए बाद में जाऊँ कि पोजीशन में लैम्डा ऐड किया, लैम्डा कहते ही उसे हैं जब वो उस पॉइंट को दबा रहा, पोजीशन में जो चेंज आएगी वो वेवलेंथ आएगी। टाइम पीरियड में अगर यहाँ टी होता, क्यू की जगह टी होता, तो यहाँ क्या आता, टाइम पीरियड होता, और टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा की फॉर्म में, यानी वो टाइम पीरियड होगा तो वो टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा होगा। यानी एंगुलर वेलोसिटी पूरे रोटेशन पर पूरे टाइम ही है ना, तो आपके पास 2 पाई जो होती है पूरा सर्कल होता है, तो इसी वजह से 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा जो है वो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। एनीवे मतलब आप जो है दैट्स व्हाई दैट इज लैम्डा, दैट इज आफ्टर लैम्डा दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। क्लियर हो गया? ठीक है, आपका नाम क्या था? हमजा? ठीक है, हमजा क्लियर हो गया? ओके। सो अब ये चीज आपके पास है, इस चीज को मैं इधर ले जा सकता हूं। अच्छा, एक बड़ी नई चीज होगी, शायद आपने पहले ना पढ़ी हो, ना भी बताऊं तो यहाँ चल जाएगी, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है बता देना ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे यूज होनी है। अच्छा, इसको मैं इधर बताऊं, इसको, ठीक है। तो आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा पी के प्लस लैम्डा, ठीक है। अच्छा, मैं लैम्डा, ओके, सॉरी क्यू के है ऐसे ही ठहरो, नहीं मैं लैम्डा ही लिखना चाह रहा हूँ, ये पी के इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यस, ये मैं उधर लिखा, ठीक है। एंड दिस विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा पी के क्यू के एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ, yes, you are right, minus aorta P K Q K, ये आ जाएगा, ओके। आपके पास ये दो, ये दो, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी हुआ, इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, दो साल उधर एक्सपोनेंट की शुरू में माइनस नहीं ये वैसे ये गया, नहीं आई समझ, नहीं एक्सपोनेंशियल तो उसमें आएगा सर, जो एक्सपोनेंट ये वाला माइनस है सर। सर इसको रकम को उठाकर हम दूसरी साइड पे लेके गए, उधर यार जाके ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऐड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई अगर साइड दूसरी साइड पे डिवाइड होगा जी सर। या मेरा ख्याल है मैं और कोई बात, एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। These are the eigenvalue, QK भी eigenvalue, PK भी eigenvalue, numbers है, they are like a numbers, and numbers जो होते हैं ना, मैंने आपको बताया था, numbers जो हैं, if they are not operator or not variable, they will be commute with each other.
ये आगे नंबर्स हैं, ये ऑपरेटर्स नहीं है, ये नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं। दीज आर दी वैल्यूज। वैसे पोजीशन और मोमेंटम कंप्यूट नहीं करते ना, दीज आर दी वैल्यूज। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आइगन वैल्यू आर नंबर्स, एक रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूट नहीं करेंगे। तो ये कंप्यूट नहीं करेंगे, तो जो कंप्यूट चीज नहीं करते, यानी इफ ई ए को प्लस ई बी है, इट कैन बी राइट एज ई ए प्लस बी प्लस एटा ये पढ़ा होगा कि अगर ए और ए बी को ऐड करें तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल जो है वो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। फॉर ए बी 0, अगर ए बी 0 नहीं है तो तब नहीं होगा। अच्छा, ये थोड़ी सी डिफरेंट, आई नो कि आपने पीछे से नहीं पढ़ा हुआ, आपने पीछे ये पढ़ा हुआ है, मुझे आई नो कि ए बी एक जैसी पावर है तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। एक्चुअली जो है, जो फार्मूला है वो और है, क्योंकि उस वक्त आप मैथमेटिकली जो है वो उतने अच्छे नहीं होते, तो इस वजह से एक्चुअली क्या होता है कि ई ए और ई बी जब करते हैं आप, तो ये होगा ई ए प्लस बी, जो आप कह रहे हो, प्लस एटा ए बी। नीचे वैसे एटा एच का आता है, नेचुरल यूनिट में एच का हम मान ले रहे हैं, वैसे एक्चुअली यहाँ एटा एच का है। ठीक है, ए बी और प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स ए बी, ये यानी इसकी पावर आती रहती है, स्क्वायर क्यूब। अगर ए बी कम्यूट है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0, हायर टर्म जो है वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। आपके कोर्स में क्यों मतलब 6, 7, 8 में ये क्यों ऐसे लिखा जाता है, उसमें वजह ये है कि आप 6, 7 में आपके पास नंबर होते हैं 2, 3, और 2 + 3 = 3 + 2, आपको पता ही है ना। कम्यूट का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था। कम्यूटेशन ब्रैकेट का क्या मतलब है, ए बी से क्या मुराद है, ए बी माइनस बी। ठीक है, अगर ये 0 होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। परेशान हो गए सर बच्चों टीचर एक्चुअली हायर ऑर्डर टर्म, यानी इनकी और पावर आ जाएगी, इसका यानी इस कंप्यूटेशन रिलेशन का फिर क्यूब फिर 4, ये ना आगे आप क्योंकि यूज होना है यहाँ तो ये नंबर है, इस वजह से जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, क्योंकि ये 0 है, इसलिए यहाँ इसकी पावर को हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। समझ आ गई है दानियाल, आपको समझ आई है? दानियाल मोबाइल ऑफ करके अपनी सीट पे बैठ जाओ। सर ये अगर कंप्यूट करें तब ये इक्वल होते हैं, तब ए बी माइनस बी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तो ए प्लस बी, फिर आगे उसके कम्यूटेशन रिलेशन, अगर 0 होंगे तो ये टर्म 0 होंगी ना, ये 0 हो जाएगी, ये फिर सारी टर्म 0 होगी। और 0 कब बदलेगा वो, जब कम्यूट करें, कंप्यूट करें। ठीक अगर ए बी बी के कम्यूट करते हैं तो ये 0 होगा ना। है जी सर। ठीक है, सर कंप्यूट में इंडिसेस डिफरेंट नहीं आते, कैसे? इंडिसेस डिफरेंट नहीं होते, वो जो भी अल्फा बीटा है या ए बी है, कोई भी। पी के और क्यू के आपने लिया ना, तो इनके इंडिसेस डिफरेंट नहीं होंगे। अच्छा नहीं, यहाँ हमने ये इकट्ठे भी एक ऐसे भी ले सकते हैं, वो तो जनरली हमने लिया था, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो ये यूज हो रहा है ना, हाँ पी के, और मैंने ये कहा कि कम्यूट कर रहे हैं, ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं, ये अगर कम्यूट कर रहे हैं तो इसकी ये पावर 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये पावर 0 हो जाती है तो क्या होगा आपके पास, एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा आपके पास, तो नहीं सॉरी कम्यूटेशन, ये सारी ये फिर अगर 0 हो जाते हैं, ये भी 0 ये भी 0, तो ये आपके पास, इसका मतलब है कि ये कंप्यूट करने हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, लैम्डा वगैरह, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, एटा पी के क्यू के
प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा पी के मल्टीप्लाई फ्रॉम एक्स पी एयोटा पी के लैम्डा जैसे लिखे एक्सपोनेंशियल। प्लीज बार बार इनको जरा प्लीज बार बार एक बात मुझे कहनी पड़ती है आपको या ओके यस और एक्सपोनेंशियल ऑफ वही बात वो दोबारा कंप्यूट कर रहे हैं पी के बराबर है एयोटा पी के लैम्डा दिस विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा पी के क्यू के माइनस एयोटा पी के क्यू के। ये इधर क्या ये डिवाइड होगा ना, डिवाइड होगा ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/एयोटा माइनस होता है। यस तो आपके पास वहां जाके योगा जाके नेगेटिव यानी इसकी पावर 1/e अल्फा e की पावर माइनस ये वाला फॉर्मूला ठीक है ठीक है। यस सर ये आपका एक्सपोनेंशियल वहां जाएगा ठीक है, डिवाइड होगा तो इसके साथ माइनस आएगा। और ये भी मैंने क्या किया इसको e की पावर ये वाला ही फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला ठीक है क्लियर हो गया। और जब ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए में से ए निकला 0 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 तो क्या होती है शुक्र है मुझे ये नहीं था दिस विल बी exponential of iota pk lambda will be equal to 1 ठीक है क्लियर हो गया। और 1 किसके बराबर होता है हैं 1 h कट के बराबर होता है नहीं वो और नेचुरल वो भूल जाओ वो हम यूज नहीं करते। तो ये किसके बराबर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल अच्छा एनीवे आपके पास ये चीज जो है इसके बराबर ये आपके पास ये है ओके। ओके तो ये 1 के बराबर था ये अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो बता देता हूँ। ये वो cos 2 पाई n जो होता है cos 2 पाई n क्या होता है 1 और sin 2 पाई n क्या होता है 0 तो 0 होता है साइन वाला 1 आपके पास ये आ गया। तो क्योंकि cos साइन बनेगा रियल में मेजर नहीं बनेगा तो आपके पास cos 2 पाई जो है वो 1 हो गया और sin 2 पाई 0 हो गया एयोटा जिसके साथ आ रहा है तो ये रियल। और आपके पास cos p के लैम्डा प्लस एयोटा sin p के लैम्डा ये आ गया। ऐसे ही है ना इसको लेफ्ट साइड को लिखा मैं प्लस cos सॉरी इक्वल टू cos 2 पाई n प्लस एयोटा साइन 2 पाई n हो गया। ऐसे ही तो आप रियल और मेजरमेंट कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो आपके पास दोनों सूत्रों में कॉस को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करें
तो इन बोथ केसेस आपके पास cos pk, यानी इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं pk लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई n, ठीक है, एंड pk विल बी 2 पाई n डिवाइडेड बाई लैम्डा। ओके, 2 पाई पूरा सर्कल डिवाइडेड विद वेवलेंथ, इट इज ऑलवेज इक्वल टू k, ये k and k का दिस विल बी आइगन, ये pk आपकी आइगन वैल्यू थी, ठीक है। सो pk की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ओके। और आपके पास स्टेट ये वैल्यू पुट करें तो स्टेट किसके बराबर आ गई, तो आइगन स्टेट क्या आ गई आपके पास, क्या थी, एक्सपोनेंशियल ऑफ, क्या थी, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा pk qk थी, यही थी ना। तो ये वैल्यू डाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n k qk, ये आपके पास आ गया साइज स्टेट। अगर एच कट लगाओगे तो यहाँ एच कट भी आता है, लेकिन क्योंकि हमने एच कट मान लिया हुआ है तो नेचुरल यूनिट में आपके पास ये वैल्यू, लास्ट इक्वेशन क्या आया? ये स्टेट आ गई, ये आइगन स्टेट आ गई आपके पास, और आइगन वैल्यू क्या आ गई, आइगन तो ये p k इक्वल टू n के ये p निकालो, ये 2 पाई बाई n जो है, ये 2 पाई बाई लैम्डा, ये आपके पास k है, ये मोमेंटम की आइगन वैल्यू। हाँ जी, दी आइगन वैल्यू pk इज nk, ये आइगन वैल्यू आ गई। ऑपरेटर क्या है आपके पास, मोमेंटम ऑपरेटर आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या था, माइनस आयोटा h का लैम्डा जो ये k ये क्या है? क्या, k वेव नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास, अब हमने मोमेंटम की आइगन स्टेट भी निकाल ली, आइगन वैल्यू भी निकाल ली, और जो है ना या इसमें कोई मुश्किल कुछ पूछने वाला, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज आइगन वैल्यू, दिस इज आइगन स्टेट, ये आइगन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फिर नोट कर लो मार्कर से ताकि आपको बाद में, ये क्या है, आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम। अच्छा यहाँ पी के था, आपने मुझे याद नहीं कराया, यहाँ पी के वैसे, क्योंकि पी रिप्रेजेंटेटिव मोमेंटम स्टेट, ठीक है। ये आपकी आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम आ गई, ये वाली, ठीक है। और ऑपरेटर तो दिया हुआ था, ठीक है। ये ऑपरेटर वैल्यू निकालेंगे हम, ऑपरेटर भी आगे जो पीछे निकाली थी वो मोमेंटम स्टेट थी। मोमेंटम स्टेट अभी पूरी नहीं निकाली, पी की वैल्यू नहीं, अब आपने पी की वैल्यू लिखो, ये एक्चुअली ये तो फाइनली आप कितना टाइम पढ़ा हमारे पास यार, आपने लोगों ने आधा घंटा लेट भी तो